بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس وتھ خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے نظم برسات کی بہاریں۔ اس نظم کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں، جو عوامی شاعر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے بارش میں ہونے والے مناظر کو بیان کیا ہے۔ آج اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے شاعر کا تعارف، شاعر کی خصوصیات کلام، نظم کا مرکزی خیال اور نظم کی تشریح۔ چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کا نام شیخ ولی محمد تھا۔ نذیر اکبر آبادی ان کا قلمی نام، اور ان کا جو اصل نام تھا وہ شیخ ولی محمد۔ نذیر ان کا تخلص تھا۔ وہ 1735 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ نذیر اپنے والد کی 12 اولادوں میں سے صرف ایک ہی بچے تھے، مطلب کہ ان کے والد کی 12 اولادیں ہوئیں اور ان میں سے صرف ایک زندہ رہے، وہ نذیر اکبر آبادی۔ جس طرح مرزا غالب کی 7 اولادیں ہوئیں مگر ان میں سے کوئی نہ بچا بدقسمتی سے، مگر یہاں پر 12 پیدا ہوئے اور ان میں سے صرف ایک جو ہے وہ زندہ رہے، نذیر اکبر آبادی۔ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والدہ کے ساتھ آگرہ منتقل ہو گئے۔ ایک مکتب سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ نذیر ایک سادہ اور صوفی منش آدمی تھے، صوفی صفت، سیدھے سادے۔ ان کی ساری عمر معلمی میں بسر ہوئی۔ وہ قناعت پسند تھے۔ بھرت پور کے حکمرانوں نے دعوت نامے بھیجے پر انہوں نے قبول نہ کیے۔ قناعت پسند جو مل جائے اس پر راضی ہو گئے اور یہ کسی دربار سے وابستہ نہ ہوئے۔ وہ کسی دربار سے وابستہ نہ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ آخری عمر میں فالج کی حالت میں مبتلا ہوئے اور 1830 عیسوی میں انتقال کر گئے۔ دہلی میں ہے، ان کا مزار دہلی میں ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعرانہ خصوصیات یا خصوصیات کلام۔ منظر کشی۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری میں مناظر فطرت کی خوب منظر کشی کی ہے۔ وہ موضوع کی مناسبت سے ایسے لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ تصویر کھینچ جاتی ہے۔ منظر کشی ان کی پہلی خصوصیات کلام۔ دوسری ہے مقامی رنگ۔ نذیر کی شاعری ایک نمایاں وصف مقامیت ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی ایک نمایاں وصف یا خوبی مقامیت ہے کہ ان کی شاعری میں تہذیب و معاشرت، ہندوستانی ماحول اور ہندوستان کے جغرافیائی اثرات و کیفیات کی واضح چھاپ دکھائی دیتی ہے۔ تیسری ہے انسان دوستی۔ نذیر اکبر آبادی ایک انسان دوست شاعر تھے۔ ان کی شاعری معاشرے کے تمام طبقوں اور تمام فرقوں کے لیے یکساں طور پر دلچسپی کا عنصر رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کی شاعری میں ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ انہوں نے تمام جو مذاہب ہیں ان کے جو ریت رواج ہیں ان کے حوالے سے بھی انہوں نے شاعری کی۔ موسیقیت، ان کی شاعری میں موسیقیت پائی جاتی ہے۔ نذیر نے مٹھاس اور روانی کے حامل الفاظ کا انتخاب کیا۔ یہ تھی نذیر اکبر آبادی کی خصوصیات کلام۔ بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ نظم کا مرکزی خیال۔ نظم کا مرکزی خیال۔ اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے برسات کی بہاریں نہایت دلکش اور خوبصورت انداز میں بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کالے کالے بادل بارش لاتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے سبزہ لہلہاتا ہے، جنگل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، بادل خوب گرجتے ہیں اور بجلی کڑکتی ہے۔
सब्जे की हरियाली में इजाफा हो जाता है। बारिश में आसमान से लेकर जमीन तक सब कुछ भीग जाता है। परिंदे चहचहाते हैं, ए खुदा ये रंग तेरे सिवा कौन रंग सकता है। बरसात अल्लाह ताला की रहमत है, मगर ये कुछ इंसानों के लिए बायस ज़हमत बन जाती है। यह था नज़्म का मरकजी ख्याल। बढ़ते हैं बंद की या नज़्म की तशरीह की तरफ। बंद नंबर 1 है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्जों की लहलहाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमावट, कतरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। इस बंद में कोई ऐसा मुश्किल अल्फाज तो है नहीं। हर घात यहाँ पर मतलब कि हर तरफ, हर जगह या हर घाटी के लें या हर वादी के लें, वहां पर जो है वो तमाशे हो रहे हैं। नज़्म का मरकजी ख्याल, जब बारिश होती है तो हर चीज पर बहार आ जाती है। हवा से सब्जा लहलहाता है, बिजली की चमक से बारिश के कतरे चमकते हैं। बारिश के कतरे में चमक आ जाती है जब चमकते हैं। तशरीह, इस बंद में शायर ने बरसात की मंजर कशी बहुत उम्दगी से बयान की है कि फजा में बरसात की अजीब बहारें होती हैं। बारिश के इस मौसम में चलने वाली हवा की वजह से हर तरफ सब्जा लहलहा रहा होता है, क्योंकि हवा चलती है तो सब्जा लहलहाता एक जो है वो मंजर, खूबसूरत मंजर पेश करता है। दरख्तों के पत्ते और शाखें झूम रही होती हैं। पत्तों और घास पर पड़े बारिश के कतरे मोती की तरह खूब चमक रहे होते हैं। देखो तो सही बरसात की बहारें दिल को लुभा रही हैं। पहले बंद की तशरीह मुकम्मल हुई। चलते हैं अगले बंद की तरफ। उम्मीद है कि आपको इस बंद की तशरीह समझ में आ गई होगी। बंद नंबर 2, जंगल सब अपने तन पर हरियाली सज रहे हैं, गुल फूल झाड़ बूटे कर अपनी धज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। तन जो मुश्किल अल्फाज है, तन कहते हैं जिस्म, बदन, और उसमें धज जैसे सज धज ये जो है वो मुरक्कब लफ्ज बोला जाता है। धज मतलब यहाँ पर बनावट है, सिंगार है, खूबसूरती है। और अल्लाह के नकारे नौबत के, नकारे और नौबत जो है वो तकरीबन हम मानी अल्फाज हैं। इसको हम कह सकते हैं कि तबल बजना, ढोल या बैंड बाजे भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो ढोलकी बजाई जाती है उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। नज़्म का मरकजी ख्याल, दौरान बारिश बिजली के चमकने और बादल के गरजने को तबल और नकारे से तशबीह दी गई है, ठीक है। तबल और नकारे मैंने पहले बयान किया कि तबल या ढोलकी वगैरह कहते हैं, और साथ में सब्जे की खूबसूरती को बयान किया गया है कि सब्जा जो है वो खूबसूरत हो जाता है। तशरीह, इस बंद में शायर ने बयान किया है कि बारिश बरसने से हर चीज धुल जाती है। जाहिर सी बात है, जब बारिश होती है, पानी आता है तो हर चीज जो है वो साफ हो जाती है। जिन दरख्तों, पौधों, झाड़ियों और फूलों वगैरह पर गर्द जमी होती है, क्योंकि हवा की वजह से जो हवा में जो गर्द होती है, जब हवा चलती है तो फिर ये पत्तों पर जो है वो, दरख्तों के पत्तों पर ये गर्द जम जाती है, जिससे उनकी खूबसूरती में कमी वाक़ई होती है। फिर जब बारिश होती है वो चीज़ धुल जाती है तो फिर वो साफ सुथरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी शादाबी मांद पड़ जाती है। तो बारिश उस गर्द को धो देती है, वो हरे भरे हो जाते हैं, जिससे उनकी खूबसूरती में इजाफा होता है। नज़ीर अकबर आबादी ने दौरान बारिश आसमान पर बिजली चमकने और बादल गरजने की आवाज़ को तिबल और नकारे से तशबीह दी है।
बंद नंबर 2 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको इस बंद का जो है इस बंद की तशरीह भी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले बंद की तरफ। बंद नंबर 3, सब्जों की लहलहाहट कुछ अब्र की स्याही और छा रही घटाएं सुर्ख और सफेद काही, सब भीगते हैं घर घर ले माह ताब माही, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहारें। अब्र कहते हैं बादल को। अब्र की स्याही मतलब काले बादल। घटाएं, आपको पता है घटाएं किसे कहते हैं। सुर्ख और सफेद काही, सुर्ख मतलब लाल, सफेद काही ये सब्जी माइल, जैसे जब बादल जो है वो जमा होते हैं, ये इकट्ठे होते हैं आसमान पर घटाओं की शक्ल में, तो उन बादलों का रंग मुख्तलिफ होता है। कोई काले होते हैं, कोई सफेद होते हैं, कोई सफेद काही या सब्जी माइल कह लेते हैं, वो उनका रंग होता है। अच्छा, माह कहते हैं चांद को, माही कहते हैं मछली को। मतलब ये है कि यहाँ पर माह जो आसमान पे होता है, आसमान से लेकर माही कहते हैं मछली के जो पानी के अंदर, पानी की तह में होती है चीज, आसमान से लेकर पानी की तह तक या जमीन की तह तक या जमीन तक हर चीज जो है वो भीग रही होती है। ठीक है, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, इसमें कोई ऐसा मुश्किल लफ्ज नहीं है। मरकजी ख्याल की तरफ बढ़ते हैं। नज़्म का बंद का मरकजी ख्याल ये है, बादल आने और बारिश बरसने का मंजर बयान किया गया है कि बादल आते हैं और जब बारिश बरसती है उसका मंजर बयान किया गया है। और बारिश अल्लाह ताला की रहमत है जो किसी करिश्मे से कम नहीं है। बंद की तशरीह, नज़ीर अकबर आबादी बादल के आने, बारिश बरसने का मंजर बयान करते हुए कहते हैं कि हवा जो काली काली घटाएं लाती हैं, उन घटाओं का रंग मुख्तलिफ होता है, जैसे काली, सफेद और सब्जी माइल। ये घटाएं सहर अंगेज मंजर पेश करती हैं और जोरदार हवा के झोंकों से सब्जा लहलहाता है, सब्जा खुशनुमा दिखाई देता है, क्योंकि लहलहाता सब्जा खुशनुमा दिखाई देता है। और ये जब ये सहर अंगेज मंजर कैसे पेश होता है, जब घटाएं आती हैं तो जब आप उफ की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो आपको लगता है कि ये एक अजीब सा मंजर बन गया है जो हमारे जो है वो खूबसूरत दिखाई देता है या अच्छा लगने लगता है। जब घटाएं खूब बारिश बरसाती हैं तो हम जहां भी नजर दौड़ाते हैं हमें पानी ही पानी नजर आता है। ये अल्लाह पाक की कुदरत के करिश्मे हैं जो उसके सिवा कोई और नहीं कर सकता। बंद नंबर 3 मुकम्मल हुआ। बढ़ते हैं अगले बंद की तरफ। बंद नंबर 4, जो इस हवा में यारो दौलत में कुछ बड़े हैं, उनके सर पे छतरी हाथी पे वो चढ़े हैं, हमसे गरीब गुरबा की चढ़ में गिर पड़े हैं, हाथों में जूतियां हैं और पैंचे चढ़े हैं, क्या क्या मची है यारो बरसात की बहार है। ऐसा कोई मुश्किल लफ्ज नहीं, मगर हाथी को यहाँ पर एक सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। उस वक्त में हाथी का जो है वो ज्यादा रिवाज था, या क्योंकि शाही जो खानदान थे वो हाथी का इस्तेमाल करते थे। आजकल हमारे पास गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ऐसा कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है, मगर इसमें ये देखें कि उसने कितना खूबसूरत जो है वो मंजर कशी की है कि जब बारिश में जब लोग निकलते हैं तो जो गरीब गुरबा, तो किस तरह उनके हाथों या पाँव के जो शलवारें जो होती हैं उनके पाँवचे चढ़े होते हैं और पाँव में उनकी जूतियां नहीं होती, वो निकाल लेते हैं फिसलने के डर से। इस तरह कितनी खूबसूरत जो है इसमें मंजर कशी की गई है। मरकजी ख्याल है, बारिश से अमीर और दौलतमंद कैसे लुत्फ अंदोज होते हैं, गरीब गुरबा कैसे मुतासिर होते हैं। कैसे अमीर लोग जो है वो लुत्फ अंदोज होते हैं और गरीब गुरबा पर कैसे बारिश जो है वो असरअंदाज होती है। ये बंद का मरकजी ख्याल है। तशरीह है, इस बंद में शायर ने बयान किया है कि बारिश किसी के लिए रहमत होती है और किसी के लिए जहमत। जो दौलतमंद होते हैं वो बरसात से लुत्फ अंदोज होते हैं,
क्योंकि उन्हें जिंदगी की तमाम तर सहूलियात मुयस्सर होती हैं। उनके घर पक्के होते हैं। अगर उन्हें घर से बाहर जाना हो तो वो सवारी का इस्तेमाल करते हैं ताकि बारिश और कीचड़ से बच सकें या महफूज रह सकें। दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें ये सहूलियात मुयस्सर नहीं होती, उन्हें बहुत सी तकालीफ का सामना होता है। जो लोग झोंपड़ी और कच्चे घरों में रहते हैं, उन्हें ये फिक्र लाहक रहती है कहीं ये छत हमारे सर पर ही ना आन पड़े। ठीक है, जो गरीब लोग होते हैं, आप लोग जानते हैं कि वो उन्हें किस तरह के मुश्किलात का सामना होता है। और जो बारिश होती है तो जब उनकी छत भीग जाती है तो सारी रात टपकती रहती है। बंद नंबर 5 हमारे नज़म का आखिरी बंद है। जिन कन्ने मुहैया पका पकाया खाना, उनको पलंग पे बैठे जड़ियों के हज़ उड़ाना है। जिनको अपने घर में या लून तेल लाना है, सर पे उनके पंखा या छाछ है पुराना। क्या क्या मच्ची है यारो बरसात की बहारें। अब जिन कन्ने का मतलब होता है जिनके पास, ठीक है। और हज उड़ाना, झड़ियों में आपको पता है कि यहाँ पर घटाएं या बारिश का बरसना। हज उड़ाना मतलब लुत्फ अंदोज होना, खुश होना, मजे लेना। लून तेल मतलब यहाँ पर जो है वो सौदा सर्फ, घर का सामान वगैरह। पंखा या छाछ है, छाछ कहते हैं जो गंदम, जो अनाज होता है उसको साफ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। नज़म का बंद का मरकजी ख्याल दौरान बारिश खाने बनाने या पेट भरने की मुश्किलात को बयान किया गया है कि कैसे मुश्किलात पेश आती हैं खाने बनाने में, या जो है वो हम पेट किस तरह मुश्किलात से फिर भरते हैं, या खाना पकाने की मुश्किलात को बयान किया गया है। तशरीह, नज़ीर अकबर आबादी इस बंद में बयान करते हैं कि बरसात के दौरान ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना कितना मुश्किल होता है। उन लोगों के लिए जो मुफलिस और नादार हैं, मुफलिस मतलब गरीब हैं या गरीब गुरबा हैं, उन्हें जब बरसात में सौदा सल्फ लेने बाजार जाना हो तो वो एक मुश्किल अमल होता है, क्योंकि उस दौरान कीचड़ में फिसल कर गिरने का खतरा होता है। इसी के साथ बारिश से वो खुद को बचाने के लिए, ठीक है, एक तो खतरा लाहक होता है और वो खुद को बारिश से बचाने के लिए पुराने छाछ या बोरे को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि कपड़े ना भीगें। ठीक है, छाछ का मैंने आपको बताया, और बोरा जिसमें हम गंदम वगैरह या कोई सब्जी वगैरह या कोई सामान वगैरह डालते हैं। प्लास्टिक की तंद होते हैं जिनका वो बना होता है। मालदार तबके की खिदमत गुजारी के लिए नौकर चाकर मौजूद होते हैं, वो बस बरसात से लुत्फ उठाते रहते हैं। ठीक है, जो मालदार होते हैं उनके पास इतने वसाइल होते हैं ताकि वो खिदमत गुजारी के लिए कोई नौकर चाकर रख लें जो उनकी खिदमत करते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल नज़म की तशरीह समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।